Hello everyone, welcome to Mindspan Education. This is our second video on the machine learning course. In first video, we started reviewing the concept of linear algebra. We started looking at the notations and we looked at what is vector, and also we looked at matrix and various types of matrices. And once we have this vector and this matrix, the important operations that we can perform, like if we have two vector, then within these two vector, if they belongs to the same dimension, we can perform the inner product, right? And if you do the inner product, what you will get is a number. So these vector belongs to some n dimensional space, and if you are trying to take the inner product, you will getting a scalar quantity. Similarly, if you have two vectors and it is not necessarily that if they should belongs to same dimension, they might belongs to different dimension, but if you perform this outer product between these two vector, what you will get is a rank 1 matrices. Now if you have the matrix and a vector, you can do the operations of multiplication between these two matrix and vector. And one way of thinking this operation, that is matrix times this vector, is taking the inner product, right? And we have the other way of thinking this matrix times vector operation as a linear combination of the columns of this matrix A, and what amount you will scale this columns of this matrix A will be given by this vector x that is sitting right next to this matrix A, right? So you can think of this matrix times vector multiplication as a linear combination of the columns of this matrix A. We have also seen the various way of doing the matrix multiplication. Afterwards, we started looking at the system of linear equations, and the system of linear equations can be also represented as a matrix equation. So this is nothing but a matrix equation, that is Ax is equals to b. If you recognize what is this, so this is matrix times this vector multiplication, right? And you can think of this operation as a linear combination of the columns of this matrix A, right? And how much this columns of this matrix A will get scale, that will be told by this matrix X. So overall, how you will take the linear combination of this matrix A such a way that you will get this vector B, right? So for the system of linear equation, what we try to solve, given this B and given this matrix A, find this X. And it is not necessarily true that you will always find this X. So we have seen the various cases, right? Okay, now let's proceed. You must have seen in your linear algebra course matrix as an transforming object or as a function, right? So let's talk about that first of all. Let's see this system of linear equation, that is Ax is equals to b, right? Now let's assume that this matrix A is m cross n, right? Now if you look at this equation, that is Ax is equals to b, and if I ask you what will be the, और ये जो वेक्टर x है वो किस डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करेगा, राइट? अगर a m क्रॉस n है और इफ वी आर लुकिंग एट दिस मल्टीप्लीकेशन, देन x जो है, x के पास कितने कंपोनेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ वैलिड मल्टीप्लीकेशन? n कंपोनेंट होने चाहिए, राइट? तभी ना a टाइम्स x आप मल्टीप्लाई कर पाओ। n कंपोनेंट होने चाहिए, मतलब कि x जो है वो कौन से डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करेगा? n डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करेगा। और ये x क्या है? एक वेक्टर है। और b क्या है? b भी एक वेक्टर होगा, और वो किस डायमेंशन से बिलोंग करेगा? ये m डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करेगा, राइट? आप सीधा देख सकते हो कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ओवरऑल b का क्या डायमेंशन होगा। सो
that is very trivial thing to do, right? So B will belongs to this m dimensional space, right? So अब आप इसको इस तरह से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो ये अब A जो है वो x पे अप्लाई हो रहा है, राइट? एंड दिस A इज ट्रांसफॉर्मिंग दिस x into some other vector b, right? and a जो है वो इस x को, जो कि x जो है वो n डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करता था, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है इस b में, और b जो है वो m डायमेंशनल स्पेस में बिलोंग कर रहा है, राइट? सो अगर ये m और n इक्वल होते हैं तो x और b जो है वो सेम डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करेंगे, बट अगर m और n इक्वल नहीं होते हैं तो इन दैट केस b विल बी इन द सम अदर डायमेंशनल स्पेस. सो ओवरऑल you can think of this matrix A as a function or as a transforming object which takes the input this x vector and produces this output vector B. Right? So अब देखो कि ये मैपिंग जो होगा बिटवीन दिस, अब इसको हम एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं दिस. सो वट एवर द पॉइंट एक्स यू विल टेक, सो यू आर फ्री टू चूज एनी एक्स इन n डायमेंशनल स्पेस, right? And depending upon this A or this transforming object, or depending upon this function or this matrix, you will get this B, right? So you are free to choose any x. So we can think of this as a input space, and this B as a output space. Right? And what आप इसको क्या सोचोगे a टाइम्स x को? So this a times x, you can think of this as a what? As a range, right? और a times x क्या होता है? So matrix times x is, you can think of this as a linear combination of the columns of this matrix A, and linear combination of the columns of this matrix A is nothing but the column space. Alright, so overall the point is that you can think this matrix A as a function or as a transforming object, right? And depending upon what kind of A here we have, we will have the corresponding mappings. Let's look at the various cases when we have the different. Now let's try to look at this transformation. So अब हम लोग क्या करेंगे कि different काइंड ऑफ ए लेंगे. जैसे कि फर्स्ट केस में देखो आप, तो ये जो मैट्रिक्स ए है वो इसके पास हर एक रो में पिवट है, हर एक कॉलम में भी पिवट है, राइट? सो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स व्हाट वी कॉल इज अ फुल रैंक मैट्रिक्स, राइट? हर एक रो में, हर एक कॉलम में पिवट है, दैट मीन्स कि जितने भी सारे कॉलम वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. हर एक रो में पिवट है, दैट मीन्स कि जो भी रो वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. तो अगर कॉलम वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रो वेक्टर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, दैट वी नो, राइट? अब हम इस पे बात करते हैं एक्स पे मतलब कि ये जो इनपुट लेंगे वो हम किस डायमेंशनल स्पेस से इनपुट लेंगे, मतलब x इज जो एलिमेंट होगा वो किस सेट से बिलोंग करेगा. इस केस में a जो है वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो जो इनपुट लेंगे हम
या जो x होगा, राइट, x एक वेक्टर होगा जिसके पास 3 कंपोनेंट होंगे। तो जो भी इनपुट हम ले रहे हैं वो किस स्पेस से ले रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस से ले रहे हैं। तो हमारा जो इनपुट स्पेस है वो क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। और कोई भी इनपुट हम ले सकते हैं, कोई भी x ले सकते हैं फ्रॉम दिस 3 डायमेंशनल स्पेस। हम अब आउटपुट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। आउटपुट स्पेस जो होगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, राइट। क्योंकि ये अगर मेरा मैट्रिक्स है A जो कि 3×3 का है, x जो है वो 3/1 का है, राइट। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा दैट विल बी इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। और सिर्फ इसका ही आउटपुट नहीं, मतलब आउटपुट स्पेस इटसेल्फ इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। इसके थ्रू जो आउटपुट आएगा, दैट मीन्स A टाइम्स x के थ्रू जो आउटपुट आएगा दैट विल बी रेंज, राइट, दैट विल बी रेंज। एंड दो रेंज जो होगा वो क्या होगा, वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में ही रहेगा, या नहीं तो वो कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्पेस इटसेल्फ हो जाएगा रेंज, या नहीं तो वो उसका सब स्पेस होगा, राइट। सो A टाइम्स x क्या है, कुछ नहीं, कॉलम स्पेस है, दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A, राइट। तो इस केस में कॉलम स्पेस भी 3 डायमेंशनल स्पेस है। क्यों? क्योंकि आप हर एक कॉलम को देखो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स all these 3 column vector will span the complete 3 dimensional space, right। so कोई ज़रूरी नहीं है, इस केस में ये हो गया कि आउटपुट स्पेस जो है और जो कॉलम स्पेस है, जो कॉलम स्पेस है वो कंप्लीट आउटपुट स्पेस को एक्वायर्ड कर रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ये जो कॉलम स्पेस होगा वो हमेशा आउटपुट स्पेस को कंप्लीटली एक्वायर्ड करेगा, राइट। सो आउटपुट स्पेस क्या होगा ये रियलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है, और आउटपुट स्पेस में रेंज क्या होगा, और दैट मीन्स कि कॉलम स्पेस क्या होगा, इसका रियलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है, राइट। इनपुट स्पेस समझ में आ गया, इनपुट स्पेस जहाँ से हम वेक्टर ले रहे हैं। अब देखो ये मैट्रिक्स जो है फुल रैंक है, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि इस x को ले रहा है, और जब मैं ये A जो है इस x पे एक्ट कर रहा है, और जब मैं ये बोलूँ कि मैट्रिक्स A इज एक्टिंग ऑन समथिंग, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप A टाइम्स x ले लो, राइट। तो और ये प्रोड्यूस कर रहा है सम अदर वेक्टर B, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है ना कि कोई भी आप x ले रहे हो जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस से हो, और ये जो B प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, दैट इज ऑल्सो इन 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। तो ये जो मैपिंग हो रहा है, दिस मैपिंग इज यूनिक मैपिंग, मतलब कोई भी आप डिफरेंट x लोगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट B। सो हर एक B के करस्पॉन्डिंग आपको x एक यूनिक मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जो मैपिंग हो रहा है, इफ़ A अगर आपके पास फुल रैंक मैट्रिक्स है तो फ्रॉम इनपुट स्पेस टू आउटपुट स्पेस द मैपिंग विल बी 1-to-1 मैपिंग, राइट। तो हर एक करस्पॉन्डिंग B के लिए आपके पास यूनिक x होगा, राइट। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, आप ये इसको रिकॉल करो कि जो मेरे पास इनपुट स्पेस है वो किस डायमेंशनल स्पेस में है। अगर मेरे पास कोई भी m×n का मैट्रिक्स है तो जो इनपुट स्पेस है वो n डायमेंशनल स्पेस से, राइट। कोई भी इनपुट हम n डायमेंशनल स्पेस से पिक कर रहे हैं। जो मेरा रो स्पेस होगा, रो स्पेस हम किसको बोलते हैं, इस मैट्रिक्स के रो स्पेस जो होगा वो क्या होगा, सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रोज ऑफ दिस, राइट। तो इस केस में जो आपका रो स्पेस होगा वो भी 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, क्योंकि ऑल 3 रो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। बट यहाँ पे एक रियलाइजेशन ये कि रो स्पेस जो है, जो भी रो स्पेस होगा वो किस
डायमेंशन से बिलोंग करेगा, और रो स्पेस जो होगा वो सब स्पेस होगा किस डायमेंशन का, वो, क्योंकि हर एक रो के पास कितने कंपोनेंट है, n कंपोनेंट है, तो रो जो स्पेस होगा दैट विल बी सम सब स्पेस इन n डायमेंशनल स्पेस, राइट। तो लेट्स सपोज कि ये आपका रो स्पेस है एंड दैट विल बी इन द n डायमेंशनल स्पेस। अब आप एक चीज़ और रिकॉल करो, जब आप ये देखते थे a टाइम्स x, मतलब a टाइम्स x इज इक्वल टू 0, x जो है यहाँ पे ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो वो 0 वेक्टर प्रोड्यूस होगा, राइट। सो x इज अ, सो ऑल सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ x विल बी इन द नल स्पेस, राइट। और a टाइम्स x कहने का मतलब क्या है कि अगर a m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो x जो होगा, x के पास कितने कंपोनेंट होंगे, n कंपोनेंट होंगे। तो ये जो नल स्पेस जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, दैट विल ऑल्सो बी इन द n डायमेंशनल स्पेस, राइट। और a टाइम्स x अगर हम कर रहे हैं, राइट, सो आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट लेते हो, मतलब जितने वेक्टर रो होंगे, रो जितने वेक्टर होंगे वो अगर आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हो x के साथ, तो हर एक कंपोनेंट 0 मिल रहा है, दैट मीन्स कि हर एक वेक्टर जो रो में है, रो स्पेस में है, और हर एक वेक्टर जो कॉलम, सॉरी, जो नल स्पेस में है, बोथ आर ऑर्थोगोनल। तो मतलब ये जो सब स्पेस है जो कि जिसको हम नल स्पेस बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इन n डायमेंशनल स्पेस। सो ये सब स्पेस जो है वो ऑर्थोगोनल होगा टू दिस रो स्पेस। सो ये क्या है, मेरा रो स्पेस, और ये है मेरा नल स्पेस, राइट। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि कोई, अब देखो जो इनपुट वेक्टर है मेरा वो किस डायमेंशन में है, वो इस डायमेंशन से हम बिलोंग कर रहा है, जो भी इनपुट हम x लेंगे वो r⁴n डायमेंशन से बिलोंग करेगा। रो स्पेस वो किस डायमेंशन का सब स्पेस है, n डायमेंशन स्पेस का सब स्पेस है। नल स्पेस अगर है तो वो किस डायमेंशन का सब स्पेस है, दैट इज ऑल्सो इज अ सब स्पेस ऑफ n डायमेंशनल सब, वो भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, नल स्पेस, राइट। तो और ये जो रो स्पेस है और जो नल स्पेस है, बोथ आर ऑर्थोगोनल, राइट। तो आपने देखा होगा कि कोई भी वेक्टर अगर आप n डायमेंशनल स्पेस से पिक कर रहे हो, लेट सपोज करो कोई भी x वेक्टर आप n डायमेंशनल स्पेस से पिक कर रहे हो जो कि इनपुट स्पेस है, तो कोई भी वेक्टर अगर आप इनपुट स्पेस से पिक कर रहे हो, सो और ये दोनों क्या है कि ऑर्थोगोनल है विद इन दिस r⁴n स्पेस, सो एनी वेक्टर कैन बी डिकम्पोज्ड to the component that is on the row space plus the component that is on the null space, right। तो किसी भी इनपुट वेक्टर को आप डिकम्पोज कर सकते हो दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट जो कि रो स्पेस पे बिलोंग करेगा, एक कंपोनेंट जो कि नल स्पेस पे बिलोंग करेगा, राइट। ऑलराइट, सो अब इस केस में हम देखते हैं कि जो मेरा ये x है, राइट, इसको x को आप डिकम्पोज कर सकते हो, तो दिस x विल बी द सम ऑफ द कंपोनेंट इन रो स्पेस प्लस नल स्पेस। अब देखो इस केस में आपको नल स्पेस में कौन सा वेक्टर होगा, ऑल कॉलम्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फ्री कॉलम है कोई भी नहीं है, तो एक ही ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो कि ax इज इक्वल्स टू 0 प्रोड्यूस करेगा, और वो कॉम्बिनेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि x वेक्टर जब 0 होगा तभी ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा। तो नल स्पेस में ओनली एक ही, ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया, एक ही एक नल स्पेस है यहाँ पे बैठा हुआ जो कि 0 वेक्टर है, राइट। सो आपके पास नल स्पेस में जो होगा वो वेक्टर जो होगा वो 0 वेक्टर ओनली होगा, राइट। तो अगर हम x को अगर इस तरह से देख रहे हैं,
इस डिकम्पोज्ड कंपोनेंट के थ्रू देख रहे हैं। नाउ अगर आप a टाइम्स एक्स देखोगे, a टाइम्स एक्स, राइट, सो you will always have the unique solution in this case, right? अब हम इस केस में आते हैं, जब आपका मैट्रिक्स जो है कुछ इस तरह का है। इसमें आप मैट्रिक्स को समझो तो हर एक रो में पिवट है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं फुल रो रैंक मैट्रिक्स, क्योंकि हर एक रो में पिवट है। और बट अगर आप इसके कॉलम्स को ऑब्जर्व करो तो ये कॉलम इंडिपेंडेंट है, ये दोनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट दिस कॉलम इज डिपेंडेंट एंड ये जो कॉलम होगा विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉलम्स, राइट। ये तो मैट्रिक्स हो गया ए। इनपुट स्पेस क्या होगा? कोई भी इनपुट अगर आप पिक कर रहे हो x, दैट विल बिलोंग फ्रॉम 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। ये मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है? ये मैट्रिक्स है 2/3 का। तो कोई भी इनपुट, कोई भी x आप पिक करोगे वो 3 डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग करेगा, राइट। अब हम ये देखते हैं कि आउटपुट स्पेस क्या होगा। तो आउटपुट स्पेस जो होगा वो 2 डायमेंशनल स्पेस होगा, राइट। अब हम ये देखते हैं कि रेंज क्या होगा, मतलब कि कॉलम स्पेस क्या होगा, मतलब कि a टाइम्स x क्या होगा। a टाइम्स x जो होगा, सिंस हमारे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो इनका स्पैन जो होगा वो 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका आउटपुट स्पेस है और जो कॉलम स्पेस है, मतलब कि जो को डोमेन है और जो रेंज है, दोनों, और इस तरह से आप सोच सकते हो कि जो कंप्लीट कॉलम स्पेस है और जो रेंज है वो कंप्लीट इस को डोमेन को एक्वायर्ड कर ले रहा है, राइट। और यहाँ पे ये जो इनपुट स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। तो सबसे पहले आप इस मैपिंग को देखो कि आपके पास जो इनपुट स्पेस है वो क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। और जो आपको आउटपुट स्पेस है वो क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। तो क्या हो रहा है, मैपिंग इस तरह से हो रहा होगा। कोई भी अगर आप पॉइंट यहाँ से पिक कर रहे हो तो, या कोई भी वेक्टर बोलो या पॉइंट बोलो, तो ये क्या हो रहा है कि ये मैप होकर के समवेयर यहाँ पे जा रहा होगा और ये मैप होकर के समवेयर यहाँ पे जा रहा होगा, राइट। तो जब ए जो है इस x पे एक्ट कर रहा होगा तो ये आउटपुट स्पेस में कहीं पे कुछ मैप कर रहा होगा, कहीं किसी पॉइंट पे, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो आपका इनपुट स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है और जो आउटपुट स्पेस है वो 2 डायमेंशनल स्पेस है, और जो पॉइंट्स मैप हो रहे हैं वो इस कंप्लीट आउटपुट स्पेस में मैप हो रहे हैं जो कि 2 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। सो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, और कोई भी आप पॉइंट अगर आउटपुट स्पेस से पिक कर लो, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो x होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी x होगा इनपुट स्पेस में, वो एक x नहीं होगा, जबकि इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल x हो सकते हैं, राइट। ओके, इसको इस तरह से पहले देखते हैं, उसके बाद से थोड़ा और इसको कोशिश करेंगे समझने का। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक फ्री कॉलम है, राइट। जब भी फ्री कॉलम होगा मतलब कि नल स्पेस जो होगा, जो आपका किसी भी इनपुट वेक्टर x को हम डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू 2 वेक्टर्स, दैट इज इन द कंपोनेंट ऑफ द रो स्पेस प्लस कंपोनेंट ऑफ द नल स्पेस। अब जो इस केस में नल स्पेस है, राइट, वो सिर्फ 0 वेक्टर नहीं है, मतलब 0 वेक्टर तो होगा ही, प्लस और भी नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे जो कि नल स्पेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ड्यू टू दिस फ्री कॉलम, राइट। तो
अब अगर आप इसको देखेंगे, इस ऑपरेशन को, जब मैट्रिक्स ए जो है इस पे एक्ट करेगा, राइट, तो ये ए टाइम्स एक्स आर प्लस ए टाइम्स द component in null space, और since this all these vector x जो है वो null space से belong कर रहे हैं, that means कि this will always be a zero vector, right? so यहाँ पे point मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो null space है वो सिर्फ जीरो वेक्टर नहीं है। जैसे कि इस केस में क्या हो रहा था कि नल स्पेस सिर्फ एक ही कंपोनेंट है नल स्पेस में, जीरो वेक्टर, बट इसमें तो जीरो वेक्टर है ही, प्लस अदर नॉन जीरो कंपोनेंट्स भी हैं और नॉन जीरो वेक्टर्स भी हैं जो कि यहाँ पे नल स्पेस में बिलोंग करेगा, राइट? तो आप कोई सा भी वेक्टर उठा लो, उसको आप इस कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। किसी भी फिक्स कंपोनेंट एक्स आर के लिए आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ नल स्पेस से वेक्टर पिक कर सकते हो, राइट? मतलब फ्री टू चूज, यू आर फ्री टू चूज दिस नल स्पेस कंपोनेंट, बिकॉज इसका अल्टीमेटली ये इफेक्ट कुछ नहीं देगा, अल्टीमेटली ये जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? सो फॉर एनी बी you will always have the infinite solution due to this null space, because you are free to choose any null space vector, right? Ultimately this will contribute to a zero vector. तो इस b के लिए आपके पास infinite number of possible x होंगे जो कि इस b को मैप कर रहे होंगे, right? तो अगर आप इसको काइंड ऑफ इस तरह से समझो, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है जो कि एक और जो आउटपुट स्पेस है आपका और जो रेंज है वो 2 डायमेंशनल स्पेस है। तो अब देखो कि कोई, तो ओवरऑल देखो आप इसके पास यहाँ जो आपका इनपुट स्पेस है वो काइंड ऑफ बिगर देन द आउटपुट स्पेस, राइट? सो ऑब्वियसली अगर कोई भी आप पॉइंट पिक कर रहे हो इन फ्रॉम द इनपुट स्पेस, राइट, तो जैसे कि अगर किसी पॉइंट को आपने यहाँ से पिक किया, राइट, अब इसके जस्ट ऊपर मे बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट, और इन द ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, इस साइड या इस साइड ये पॉइंट भी पिक कर सकते हो, ये पॉइंट भी पिक कर सकते हो। अब इसके ऊपर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पिक कर सकते हो। सो ऑल आर गोइंग टू मैप इनटू द सेम बी, राइट? और आपको यहाँ से भी ये वेरीफाई हो रहा है, सेम चीज़ है। मतलब यहाँ पे जो ये आपका क्या है, ये अगर आपका रो स्पेस है, अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स ले रहे हो आप, तो एक कंपोनेंट एक्स आर हो गया आपका रो स्पेस में, एक कंपोनेंट हो गया नल स्पेस में, राइट? तो ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट्स ले रहे हो जो कि और जो ऑर्थोगोनल पॉइंट्स ले रहे हो जो कि इस रो स्पेस के ऑर्थोगोनल है, तो यू आर फ्री टू चूज एनी पॉइंट दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू दिस, राइट? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हाउ इट विल हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो मैपिंग होगा यहाँ पे, कोई भी बी का मैपिंग, कोई भी बी जो आउटपुट स्पेस में है, इट विल हैव मैनी एक्स और इनफाइनाइट मैनी एक्स जो कि इस पॉइंट को मैप करेगा। ऑलराइट, सो इस केस में अगर देखो आप, जो केस थर्ड है जिसमें कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें आपको कॉलम में भी पिवट है और हर एक कॉलम में पिवट है। तो दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स व्हाट वी कॉल इज द फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स। सारे रो में पिवट नहीं है, एक रो जो है वो जीरो रो है। तो ये मैट्रिक्स ए है। अब इसका इनपुट स्पेस क्या होगा, वो 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। आउटपुट स्पेस जो होगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, राइट? कोई भी आप इनपुट पिक करोगे तो वो 2 डायमेंशनल स्पेस से पिक करोगे, और कोई भी आउटपुट जो फॉल करेगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस में फॉल करेगा, राइट? बट ये जो कॉलम स्पेस है, मतलब ए टाइम्स एक्स जो है, मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्म होगा ये एक्स इनटू बी में, तो वो 2 डायमेंशनल, मतलब कि एक प्लेन पे मैप होगा, और ये जो प्लेन होगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा, राइट? बिकॉज आउटपुट स्पेस इज 3 डायमेंशनल स्पेस, बट जो भी पॉइंट मैप हो रहे हैं
वो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन पे जो कि कॉलम स्पेस है उस पे मैप हो रहे हैं, राइट। सो यू हैव हियर और 2 डायमेंशनल स्पेस दैट इज़ द इनपुट स्पेस। तो यहाँ से अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो वो उसके पास 2 कंपोनेंट होंगे। तो x इज़ हियर, कोई भी आप पॉइंट पिक कर सकते हो फ्रॉम दिस 2 डायमेंशनल स्पेस। आपका जो आउटपुट स्पेस है वो क्या है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। बट आपके जो पॉइंट मैप हो रहे हैं वो इस कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्पेस में मैप नहीं हो रहे हैं, वो समवेयर एक रेंज में और एक कॉलम स्पेस में मैप हो रहे हैं। मतलब कि आपने इस पॉइंट को पिक किया, दिस विल गेट मैप्ड टू समवेयर हियर इन द ऑन द प्लेन। सो ये जो है आपका रेंज है, दैट इज़ द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे कोई भी इनपुट पिक कर रहे हो तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। बट यहाँ पे अगर आप इस प्लेन में अगर कोई इनपुट मैप हो के आ रहा है तो इसके पास 3 कंपोनेंट होंगे, राइट। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस पॉइंट को देखो जो कि इस कॉलम स्पेस में नहीं है, राइट, बट इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट स्पेस, राइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट स्पेस। सो corresponding to this output you will not find any x जो कि इस पॉइंट को मैप कर रहा होगा। इसके corresponding कोई भी आपको x नहीं मिलेगा, राइट। अगर इस कॉलम स्पेस में है देन इन दैट केस यू विल फाइंड अ यूनिक एक्स। यूनिक एक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्री कॉलम नहीं है। तो आपके पास जब भी ये कॉलम स्पेस में अगर कोई आउटपुट फॉल कर रहा होगा या आउटपुट मैप हो रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक्स होगा जो कि यूनिक होगा, राइट। बट अगर कोई भी आउटपुट अगर आउट ऑफ दिस कॉलम स्पेस है देन देयर इज नो सच एक्स जो कि इस बी को प्रोड्यूस कर रहा होगा, राइट। और यू कैन थिंक ऑफ समथिंग, इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये अगर हम इसको इस तरह से देखें कि अगर इस कोई भी इनपुट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ रो स्पेस एंड कंपोनेंट ऑफ नल स्पेस। यहाँ पे नल स्पेस जो वो क्या है, ये आपका ओनली 0 वेक्टर है बिकॉज कोई भी आपके पास फ्री कॉलम्स नहीं है, राइट। सो अगर सॉल्यूशन है देन इट वुड बी अ यूनिक सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन नहीं है दैट मीन्स अगर ये बी जो है कोई हम ऐसा ले रहे हैं जो कि इस कॉलम स्पेस में नहीं आ रहा है देन there would be no such x that is going to map this input to somewhere here p, right। so यहाँ पे देखो आपका इनपुट स्पेस जो वो 2 डायमेंशनल स्पेस है और आउटपुट स्पेस जो वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। बट सारे जो पॉइंट मैप हो रहे हैं इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन पे मैप हो रहे हैं जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है, राइट। सो काइंड ऑफ सारे ये जो पॉइंट्स दैट इज ऑन द 2 डायमेंशनल स्पेस are getting embedded into the 3 डायमेंशनल स्पेस। और कहाँ पे इम्बेड हो रहा है, एक प्लेन पे इम्बेड हो रहा है, बट वो प्लेन कहाँ पे है, वो प्लेन इटसेल्फ इन द 3 डायमेंशनल स्पेस में, राइट। नाउ कमिंग टू दिस केस, यहाँ पे इस टाइप के मैट्रिक्स हम बोलते हैं रैंक डिफिशिएंट मैट्रिक्स एंड इट हैज़ द फ्री कॉलम्स, राइट। फ्री कॉलम्स है तो डेफिनेटली इट विल हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। सो काइंड ऑफ आप इस केस को सोच सकते हो। आपके पास जो इनपुट स्पेस है वो क्या है, 4 डायमेंशनल स्पेस है, राइट। और जो आउटपुट स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, और जो रेंज है वो ओनली 2 डायमेंशनल स्पेस है। मतलब कि अगर जो आपका आउटपुट स्पेस अगर आप देखो तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, बट जितने सारे पॉइंट मैप होके आ रहे हैं फ्रॉम दिस 4 डायमेंशनल स्पेस वो इस प्लेन पे आ रहे हैं जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में। सो ये क्या है, कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, राइट। सो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे इन द इनपुट स्पेस जो कि मतलब बहुत सारे क्या मतलब कोई भी आप अगर पॉइंट यहाँ पे ले रहे हो जो कि इस कॉलम स्पेस में है तो इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट मैनी एक्सेस होंगे जो कि सेम पॉइंट पे मैप करेगा, राइट, ड्यू टू दिस फ्री कॉलम्स। सो फ्री कॉलम्स है दैट मीन्स कि आपके पास जो नल स्पेस का कंपोनेंट होगा वो सिर्फ 0 वेक्टर नहीं होगा, बहुत सारे नॉन 0 वेक्टर्स भी होंगे इसमें, राइट। और जब ए इस पे एक्ट करेगा तो सो यू आर फ्री टू चूज दिस एक्स एन कॉम्पोनेंट। सो किसी भी एक फिक्स एक्स आर वेक्टर के लिए आप एक्स एन इनफाइनाइट
चूज कर सकते हो, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर. सो कोई भी बी पिक कर लो फ्रॉम दिस आउटपुट स्पेस जो कि इस कॉलम स्पेस में है. फॉर दैट यू विल हैव अ इनपुट एक्स, एंड एक ही कॉम्बिनेशन नहीं होगा जो कि इस बी को प्रोड्यूस करेगा. देर आर इन्फाइनाइट मैनी कॉम्बिनेशन दैट विल प्रोड्यूसिंग दिस बी. अब इस केस में एक और क्या है कि अगर ये जो कोई भी ऐसा बी जो कि, क्योंकि बी आपका क्या है, सॉरी जो आउटपुट स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो बी जो है ऐसा भी हो सकता है केस कि इस कॉलम स्पेस में फॉल ना करे. मतलब बी जो है हम जो पिक कर रहे हैं वो कॉलम स्पेस में नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी ऐसा इनपुट नहीं होगा जो कि इस बी को प्रोड्यूस कर रहा होगा. सो इस केस में इधर आपको इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे या नहीं तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. राइट. आई होप दिस would have make some sense. All right. Okay, let's visualize जो भी हम लोगों ने अभी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखे, उनके मैपिंग को थोड़ा लेट्स हैव सम काइंड ऑफ विजुअल. फर्स्ट केस जो हम लोगों ने देखा था जिसमें कि हमारा मैट्रिक्स था वो क्या था, फुल रैंक मैट्रिक्स था. राइट. सारे कॉलम सारे रो जो थे मैट्रिक्स के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे. तो सेम स्पेसिफिक केस को लेंगे हम लोग. जैसे कि ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है और जो स्पेस दिख रहा है रेड कलर में और एक स्पेस दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, तो रेड कलर वाला जो है वो आपका इनपुट स्पेस है और वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है, और 3 डायमेंशनल इनपुट स्पेस है, और जो आपका ग्रीन है वो आउटपुट स्पेस है और वो भी 3 डायमेंशनल स्पेस है. तो मैट्रिक्स ए जो है वो किसी भी वेक्टर एक्स को पिक कर रहा है फ्रॉम द इनपुट स्पेस और उसको मैप कर रहा है टू द आउटपुट स्पेस. तो जो मैपिंग हो रहा है फ्रॉम द 3 डायमेंशनल स्पेस टू 3 डायमेंशनल स्पेस. राइट. और अगर इस केस में मैट्रिक्स ए जो है वो फुल रैंक है, तो जितने भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप अगर पिक करो फ्रॉम इनपुट स्पेस, दैट विल गेट यूनिकली मैप्ड टू द आउटपुट स्पेस. राइट. कोई भी वेक्टर आप अगर इन आउटपुट स्पेस से पिक करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा. राइट. इफ ए इज अ फुल रैंक मैट्रिक्स. राइट. So every vector in the input space will get mapped to output space unically. Now let's look at the case where we have the full column rank. Full column rank मतलब सारे कॉलम जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे मैट्रिक्स का, बट सारे रो में और सारे रो जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है. फुल कॉलम रैंक को आप अच्छी तरह से समझते हो. राइट. इस केस में जो मैपिंग होगा, सबसे पहले इनपुट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं. जो रेड में दिख रहा है वो आपका इनपुट स्पेस है और वो एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, और जो ग्रीन में दिख रहा है वो आपको एक आउटपुट स्पेस है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस है. तो जो ए है वो फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स है, वो क्या कर रहा है, मैप कर रहा है 2 डायमेंशनल स्पेस टू 3 डायमेंशनल स्पेस. राइट. सो इस केस में क्या हो रहा है कि जो प्लेन है, यू कैन थिंक ऑफ द इनपुट प्लेन जो है उसमें से अगर आप कोई भी एक्स पिक करोगे वो आउटपुट स्पेस में मैप होगा, बट वो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू दैट हाउ द मैपिंग वुड लुक लाइक. सो कोई भी आप वेक्टर पिक करोगे फ्रॉम इनपुट स्पेस दैट विल गेट मैप्ड टू दिस प्लेन, और वो प्लेन क्या है, कॉलम स्पेस है, and that is in the output space. Right. So all the points are getting mapped into 3 dimensional space, और वो complete 3 dimensional space में मैप नहीं हो रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो complete 3 dimensional space को रिक्वायर कर रहा है आउटपुट स्पेस को, नहीं. जो भी पॉइंट मैप हो रहे होंगे वो इस प्लेन में मैप हो रहे होंगे जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है. राइट. तो बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट होंगे इन आउटपुट स्पेस जिसका कि आप x जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हो, और अगर x जो है, सॉरी, अगर b जो है जो आउटपुट वेक्टर है वो अगर इस प्लेन पे है, जो आप पिक्चर देख रहे हो जिसमें कि एक प्लेन जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में, अगर कोई भी वेक्टर उस प्लेन पे है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका x होगा वो यूनिक होगा. क्यों यूनिक होगा? क्योंकि इस केस में आपको कोई भी फ्री वेक्टर्स नहीं है. राइट. तो नल स्पेस नहीं होगा. अगर नल स्पेस का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. और अगर कोई भी बी
और कोई भी आउटपुट वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, आउट ऑफ दिस प्लेन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक्स फाइंड नहीं कर पाओगे। इस केस को देखते हैं जब आपके पास फुल रो रैंक है, राइट। तो फुल रो रैंक में आपके पास जो मैट्रिक्स है उस केस में आपके पास कॉलम वेक्टर जो होंगे वो फ्री कॉलम वेक्टर आपके पास होंगे, राइट। तो ऑब्वियसली इस केस में आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। बट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द मैपिंग। तो मैपिंग, जो आपका इनपुट स्पेस है वो रेड कलर में है और जो आउटपुट स्पेस है वो काइंड ऑफ ब्लैक और ग्रीन के साथ है। तो जो मैट्रिक्स ए मैप कर रहा है वो 3 डायमेंशनल टू 2 डायमेंशनल मैप कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कोई भी आप वेक्टर पिक करो इन द आउटपुट स्पेस, दैट इज इन द 2 डायमेंशनल स्पेस, उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट मैनी एक्स मिल जाएंगे, राइट। जो कि सेम एक्स को, जो कि सेम बी के लिए आपके पास इनफाइनाइट मैनी एक्स होंगे इस केस में, राइट। एंड दिस वाज द केस ऑफ द रैंक डिफिशिएंट मैट्रिक्स, जहाँ पे कि आपको इनपुट स्पेस जो है वो 4 डायमेंशनल स्पेस है और आउटपुट स्पेस जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। और जो आपका मैप होगा फ्रॉम 4 डायमेंशनल स्पेस टू दिस 3 डायमेंशनल स्पेस, सो यू विल गेट अ प्लेन दैट जो भी पॉइंट मैप होंगे फ्रॉम दिस 4 डायमेंशनल स्पेस टू दिस 3 डायमेंशनल स्पेस, वो एक इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन पे सारे पॉइंट जो है वो 4 डायमेंशनल स्पेस के मैप होंगे, राइट। तो अगर आउटपुट वेक्टर इस प्लेन में लाई कर रहा है जो कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में आपको फ्री वेक्टर्स मिलेंगे एंड ड्यू टू दैट यू विल हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नल स्पेस। और अगर आउटपुट वेक्टर जो है इस ब्लू वाले प्लेन में जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर वो लाई नहीं करेगा कोई भी आउटपुट वेक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको इधर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे यानी तो 0 सॉल्यूशन होंगे, राइट। ओके, सो जितना भी अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया, राइट, सो सारे का समरी जो है आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, फॉर ऑल द केसेस। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रोजेक्शन। सो लेट्स लुक एट दिस केस where we have the full column rank, right. So all those vectors are, or those column vectors are linearly independent and we have the full column rank, right. इस केस में जो हमारा इनपुट स्पेस होगा वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल स्पेस, और जो आउटपुट स्पेस होगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, और जो कॉलम स्पेस होगा वो एक प्लेन होगा इन दिस 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। सो इसमें हम लोग जो है थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। क्या अच्छा कर सकते हैं ये पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखो, अगर आपका जो ये आउटपुट स्पेस है, यहाँ पे जो आउटपुट स्पेस है, आउटपुट स्पेस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, राइट। सो दिस इज आर क्यूब, दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। और जो आपका कॉलम स्पेस है, जो सारे इनपुट मैप होके आ रहे हैं इस आउटपुट स्पेस में, वो एक प्लेन पे, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एक प्लेन पे मैप होके आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज योर रेंज, राइट, जहाँ पे कि सारे इनपुट जो है वो मैप हो करके आ रहे हैं। और जो भी मैपिंग होगा, अगर कोई भी यहाँ पे वेक्टर बी है इन दिस ऑन दिस प्लेन इन द आउटपुट स्पेस, वो x जो उसके करस्पॉन्डिंग होगा वो यूनिक होगा, राइट। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि अगर कोई भी पॉइंट, अगर b हम ले रहे हैं इन दिस आउटपुट स्पेस, दैट इज नॉट इन द कॉलम स्पेस, सो b इज नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स A, और जो b है वो इस रेंज में नहीं है, राइट। सो फॉर दैट केस वी कैन नॉट फाइंड or we cannot solve this equation, that is ax is equals to b, right, because b is not in the column space। और ये क्या है, ये a time x is the it tells you that the linear combination of the columns of this matrix A। so b अगर column space में नहीं है तो obvious सी बात है आपको कोई भी
उसके करस्पॉन्डिंग x नहीं मिलेगा, राइट। सो ये जो चीज़ है ना, आपको लीनियर रिग्रेशन में आएगा, जहाँ पे कि जो डाटा पॉइंट है दैट विल बी नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स, राइट। सो उस केस में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चीज़ देखने का कोशिश करेंगे, राइट। तो जब हम उस टर्म्स में बात करेंगे तो वी विल बी डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझो कि इस इक्वेशन को तब हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो बेस्ट क्या कर सकते हैं, मतलब कि कुछ एस्टिमेटेड x जो कि क्लोज टू दिस b हो, राइट। कैन वी हैव समथिंग और कैन वी हैव द सॉल्यूशन दैट इज क्लोज टू b, राइट, एंड इज इन द कॉलम स्पेस। सो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। लेट सपोज करो कि कोई भी आपका वेक्टर ये b है, ये वेक्टर b है दैट इज़ नॉट इन द कॉलम स्पेस। अगर ये आपका कॉलम स्पेस में नहीं है, आप क्या करो, सिंपली इसका जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है दैट इज़ इन द कॉलम स्पेस उसको लो। वो कैसे लोगे आप, उसका लेने का तरीका है, हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर b को हम इस कॉलम स्पेस में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास वेक्टर आएगा, एंड नाउ दिस वेक्टर, लेट्स कॉल दिस वेक्टर p। तो ये जो p वेक्टर है, नाउ दिस इज इन द कॉलम स्पेस, राइट। So now instead of solving this ax is equals to b, what we will be trying to solve is a, so कोई other combination होगा x hat, right, and that is producing this b, p, right. If p is in the column space, then p can be written as the linear combination of the columns of this matrix A, right, and ये x hat होगा। देखो ये x जो है वो आप फाइंड नहीं कर सकते हो, बट देयर वुड बी सम एक्स हैट जिससे कि आप अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए लोगे तो ये आपको पी वेक्टर मिल जाएगा। और ये जो पी होगा, दिस पी वेक्टर, दैट वुड बी क्लोजेस्ट टू दिस बी, राइट। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर लेते हो तो दैट विल बी नॉट इन द कॉलम स्पेस, क्लोज तो होगा बट दैट विल बी नॉट इन द कॉलम स्पेस। आपको कॉलम स्पेस में भी रखना है और इसके क्लोजेस्ट होना चाहिए, राइट। तो एक ही वे से आप कर सकते हो, आप सिंपली इस वेक्टर और इस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर सकते हो इनटू द कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, राइट। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस थिंग्स इन अ वेरी डिटेल मैनर। नाउ लेट्स कॉल दिस वेक्टर, ये जो वेक्टर है आपको, इसको हम ई वेक्टर बोलते हैं और इसको हम जनरली एरर वेक्टर बोलते हैं। एरर इस इन द सेंस कि इतना एरर जो है वो मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ एरर इज गेटिंग इंट्रोड्यूस, एंड जो आपका डेविएशन हो रहा है विथ दिस मच ऑफ अमाउंट, सो सिंपली कंसिडर दिस एज अ एरर वेक्टर, राइट। अगर एरर 0 होगा तो ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी इन द कॉलम स्पेस, राइट। अगर एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो रहा है कि कॉलम स्पेस से ये डेविएट होकर के समवेयर आउट ऑफ दिस कॉलम स्पेस आ रहा है, राइट। सो दैट वी कॉल इट एज अ एरर वेक्टर, एंड दिस एरर वेक्टर विल बी ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल टू दिस कॉलम स्पेस, राइट। अगर ये कॉलम स्पेस, सो ये वेक्टर जो है किस सब स्पेस से बिलोंग करेगा, 4 फंडामेंटल सब स्पेस याद करो। तो सबसे पहली बात कि जो कॉलम स्पेस है दैट इज़ इन द r⁴m डायमेंशनल स्पेस, राइट, इस आउटपुट स्पेस में है अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तो अगर ये मेरा कॉलम स्पेस है, दिस इज कॉलम स्पेस, सो वी हैव द ऑर्थोगोनल सब स्पेस दैट वी कॉल एज अ व्हाट, लेफ्ट नल स्पेस, और इसको हम लोग इस तरह से नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, राइट। सो ओवरऑल पॉइंट इज दैट दिस वेक्टर ई इज orthogonal to the column space, that means this vector E will be in the left null space, right. So can we write that the left null space, that means A transpose, left null space of A transpose, so A transpose times this E will
be a zero vector, right? Now using the vector addition, this vector E can be written as vector B minus vector P, right? And similarly P को हम लोग लिख सकते हैं A linear combination of the columns of this matrix A. So P can be written as A times X hat, right? And using this equation, that is the normal equation, right? So this what we call is a normal equation. Using this normal equation, this can be written as A transpose vector E is B minus A X hat is equals to 0. Now this A transpose B minus A transpose A X hat is equals to 0. So from here we can write A transpose A X hat is equals to A transpose B. So this is what we call this equation, that we call as a normal equation, and you will see that this equation will come up when we will go through the linear regression. Right? Now since this matrix A have the linearly independent column, so this matrix, that is A transpose A, and this will be a square matrix and it will be a invertible matrix. So this is invertible since A has linearly independent columns, right? That means in order to find this X hat, what we can do, we can multiply both side this matrix का inverse right. So this matrix will be multiplication of this A inverse and this matrix times this inverse of this, that will be identity matrix. So from here we can find this vector, that is X hat, that will be equal to A transpose A inverse, sorry, A transpose A का inverse times A transpose B, and this is also known as the least square solution. And so what we are trying to do, we are trying to find, so we know that this we cannot solve, right? If B is not in the column space, we cannot solve. So what we have done, we have projected this B into the column space, right? And we are calling this projected vector as P. So this P can be written as the linear combination of the columns of this matrix A, since this vector P is in the column space of A, right? And this projected vector will be the, or this projected point that is on this column space will be the nearest point to this B, and that is in the column space, right? So instead of looking at this X, what best we can do in order to find the P such a way that this P is very near to this B and this P is also in the column space of this matrix A, right? So this will give you the estimate of this solution X, or this vector X, and that is X hat, right? And from here you can find this projection matrix as well. So the projected matrix is this small p, right? So this small p is the projected matrix, and this is nothing but the linear combination of the columns of this matrix A, right? And we have already found this X hat, so we just need to put this X hat. So X hat is A transpose A का whole inverse and A transpose B, right? So this is the projected vector P,
right? So if you see matrix as a transforming object, then you will observe that this matrix is transforming this vector b into this p, right? So this matrix is a projection matrix, right? That is projecting this b to the vector p. So from here what we can recognize is that, let's denote this projection matrix as capital P. So this projection matrix will be A transpose A ka inverse and A transpose, right? So when you will, or when this matrix P, that is the projection matrix, will act on this vector B, then what you will get is this projected vector that is in the column space of this matrix A, right? So that was the concept about the projection, and you will see that this will come up when we will go through the linear regression. Okay, now I think we should stop this video, and we will be again looking at few more concepts from the linear algebra. We will be discussing about eigenvalues, eigenvector, and the determinant, and other important concept, right? So we will be discussing all these things in the next video, and we will try to finish up this review of linear algebra in next video, and then we will pick up reviewing the concept of the probability theory. All right, that is all in this video. Thank you so much.